Hello students, welcome back. I am here with the grade 8 chapter number 5 natural disasters. So let's get into the chapter. Natural disasters. First of all, natural disasters का मतलब ही ये है जो नेचर क्रिएट करता है. एग्जाम्पल earthquake, cyclone, tsunami, landslide and many of like this. ओके सो यहाँ पे डिज़ास्टर, ये सारी डिज़ास्टर्स काफ़ी सारे आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. किस वजह से होता है, किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. ऑन 12th March 2011, Krishna saw the pictures of a tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur?" Sir replied, "Natural disasters are of two types. Disasters like earthquake, tsunami, and volcano occur due to the changes in the interior of the earth, whereas disasters like flood, cyclone, forest fire, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth." So basically, in this chapter, a student named Krishna saw a picture of tsunami in the newspaper and the date is mentioned here, 12th March 2011 की बात है ये. So after reaching the school, she asked her teacher, "Sir, that I read the paper, okay, and in that tsunami के बारे में कुछ लिखा गया था, तो how does a tsunami occur?" So her sir replied that natural disasters are of two types. Disasters like earthquake, tsunami and volcano occurs due to the changes in the interior of the earth. मतलब earthquake, tsunami और volcano जैसे disasters कब होते हैं? जब अर्थ के इंटीरियर में चेंजेस होते हैं. जबकि disasters like flood, cyclone and forest fire, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. Flood, cyclone, forest fire and drought. All these disasters occur when there are changes on the surface of the earth. मतलब जब surface of the earth के ऊपर जब changes आते हैं तब. Now first is earthquake. The weak upper crust of the earth suddenly experienced tremors, either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. So what is earthquake? The weak upper crust of the earth suddenly experienced tremors. Tremors का मतलब होता है shaking. ठीक है. अर्थक्वेक, भूकंप, हम सबको पता है क्या होता है. जब अर्थ का सरफेस, अपर क्रस्ट जो होता है वो ट्रेमरिंग करने लगता है, मतलब हिलने लगता है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इज द कोलिजन ऑफ प्लेट्स और ड्यू टू द ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जब अर्थ के नीचे से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जब काफ़ी प्रेशर आता है, या जब दो प्लेट जो होते हैं वो कोलाइड होते हैं, ठीक है, टकराते हैं, तब अर्थक्वेक आता है. Waves or tremors of earthquake originate from its hypocenter, which is deep down below the surface of the earth. Waves या tremors जो हम फील करते हैं earthquake का, वो कहाँ से originate होकर आता है? Hypocenter से. Means that point deep down below the surface of the earth where the plates collide. That is called hypocenter. Such sudden shaking or trembling is known as earthquake. तो और ये जो सब होता है वो सडन होता है, अचानक से होता है, शेकिंग और ट्रेबलिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक और भूकंप. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. Earthquake occurs due to the internal disturbance in the earth. और earthquake के जो waves हम feel करते हैं, ठीक है, वो एपिसेंटर से होता है. लाइक उसके इंटीरियर ऑफ द पार्ट में जो होता है, अर्थ के इंटीरियर में जो जिस पार्ट पे होता है उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, और करेक्ट अबाउ उसका जो पॉइंट है उसको एपिसेंटर बोला जाता है, जैसे वो ओरिजिनेट होकर आता है. ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. एंड अर्थक्वेक इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से होता है, मतलब अर्थ के नीचे के डिस्टर्बेंस के वजह से होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हियर यू कैन सी एपिसेंटर, हाइपोसेंटर. ठीक है, एपिसेंटर के बारे में यहाँ पे बताया है फोटो में. The disturbance on the surface due to earthquake. Here you can see the scenes of destruction due to earthquake, right? काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है. The waves of earthquake spread outward from the epicenter.
एपी सेंटर मतलब जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ से ये वेव जो होता है वो फैल जाता है, ठीक है। द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबाउ द हाइपोसेंटर और फोकस इज नॉन एज एपी सेंटर, एज आई हैव टोल्ड बिफोर ओनली। एग्जैक्टली अबाउ द हाइपोसेंटर और फोकस, जहाँ से ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इट इज़ कॉल्ड हाइपोसेंटर, एंड एग्जैक्टली अबाउ हाइपोसेंटर इट इज़ कॉल्ड एपीसेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपीसेंटर। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का इंटेंसिटी या सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पर आता है? एपीसेंटर वाले एरिया में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपीसेंटर। जैसे जैसे एपीसेंटर से दूर होता जाता है वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता जाता है, राइट। द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। नाउ अर्थक्वेक कितना आया है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, कितने फोर्स में आया है। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन और हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ इज अ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। हम अर्थक्वेक को स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ से आया है या कितना प्रेशर से आया है, उसका इंटेंसिटी कितना था, विद द हेल्प ऑफ सीस्मोग्राफ। There are three main reasons for the occurrence of a earthquake. Three main reasons are there. First, earthquake caused by volcanic eruptions. Second, earthquake caused by strike slip faults. Third, earthquake caused by subduction in an active subduction zone. So these are the three main reasons of earthquake. ठीक है, volcanic eruption होना, strike slip faults होना, and third is active subduction zone में सबसे ज़्यादा देखा जाता है अर्थक्वेक। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 6,371 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। लेट्स मूव अहेड। द सेकेंड डिजास्टर इज volcano. Volcano refers to an opening in the earth's crust from which motion नहीं है, ये molten है, which molten lava, rock, fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth surface. So what is volcano? Volcano का मतलब होता है, volcanic eruption का मतलब होता है, as you can see here on the picture also, अर्थ का क्रस्ट जब ओपन हो जाता है, हमारा अर्थ का जो सरफेस है ना, हमारा अर्थ का जो अपर लेयर है, क्रस्ट है, ठीक है, वो जब खुल जाता है और उसमें से मॉल्टन लावा, यू कैन सी हियर लाल लाल एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे बताया, डॉर्मेंट वॉल्केनो बताया, ठीक है। तो मॉल्टन लावा, उसके साथ साथ रॉक, फ्रेगमेंट्स, ashes, dust and gases, so all these are ejected from below the earth surface, ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर से सब बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड volcanic eruption. Volcanic eruption occur due to four main reasons. So there are basically four main reasons for the eruptions. First, high temperature in the interior of the earth, सब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना, ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर, इंटीरियर में, अंदर में। Second, creation of magma. We know that whenever volcanic eruptions occur, magma भी बाहर आता है, creation of magmas. Third, creation of gases and vapor. We know that many of types of gases are present in the interior of the earth also. So when these gases and vapor with heat and pressure, when they pull themselves upward, at that time this volcanic eruption occurs. And fourth is rising of magma towards earth's surface. जब magma earth के surface की तरफ आता है और हमारा अर्थ का सरफेस अगर वीक होगा, क्रस्ट अगर वीक होगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। सेकेंडली, द वाटर पर्कुलेटिंग टुवर्ड्स द क्रैक एंड ओपनिंग ऑफ वीक रॉक surface turns into vapor. This vapor is full of pressure owing to lack of space and tries to come out with great force. तो जब कभी ये मैग्मा जो होता है उसको जब प्रेशराइज करते हैं, जो बाकी सारे जो गैसेस होते हैं ना मैग्मा के नीचे, वो मैग्मा को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। दूसरा, जब जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है वो वीक होता है, हमारा अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसका ओपनिंग जो होता है वो वीक होता है, ठीक है, तब क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जो सरफेस है, वो धीरे धीरे खुलने लगता है। दिस वेपर इज़ फुल ऑफ प्रेशर, और वो जो वेपर होता है उसमें बहुत प्रेशर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट केम आउट विथ ग्रेट फोर्स। और जब चूँकि वो प्रेशर के साथ आता है, बहुत ही प्रेशर के साथ आता है, तो क्या एकदम फट जाता है। जैसे जब हम गैस के ऊपर चढ़ाने रखते हैं कुकर, और जब उसमें बहुत ज़्यादा
वेपर जमा रह जाता है तो वो कैसे फट जाता है, ठीक है, उस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाते तो ग्रेट फोर्स के साथ फट जाता है. दैट similarly that is what volcanic eruption. This vapor also causes magma to rise upward. The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock, pieces of various shapes and sizes etc. and this is known as volcano. So ये जो volcanic eruption होते हैं उसमें काफ़ी सारे अलग अलग materials, for example different types of gases are present, with that magma is present and बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ऊपर आता है. इसके अंदर लावा होता है, एशेस के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस, रॉक पीसेस होते हैं ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, स्मॉल एंड बिग साइजेस एंड whenever this volcanic eruption is caused, this is called volcanic eruption. उसके साथ ये सब कुछ आता है. All these volcanic residues come on the surface of the earth and form a mountain like structure as you can see on the picture. राइट, जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है. इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेस एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नैरो देन द इरप्शन इज डेंजरस. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ द गैसेस एंड वेपर इज मोर, अगर वो गैसेस और वेपर, ठीक है, जो आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर वो ज़्यादा हो और हमारा अर्थ का जो सरफेस हो वो बहुत ही नैरो हो, बहुत ही पतला हो, तो वो जो इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि वो बहुत ज़ोर से फटता है. But if the amount of the gases is less and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spreads itself on the earth's surface. इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, अगर गैसेस कम होता है, वेपर कम होता है, ठीक है, और अगर वो ऊपर की तरफ आ रहा है बट हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, जो ओपनिंग है वो ब्रॉड होता है, बड़ा होता है और लंबा होता है, तब ये मोल्टन लावा क्या करता है, कम स्लोली, धीरे से आके अपने आप को स्प्रेड कर देता है, तो वो इतना डेंजरस नहीं होता है. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो. वोल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. वोल्केनो वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस में हम देख सकते हैं वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. देयर इज ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज इन द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार. पूरे इंडिया में एक ही जगह है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है. एक्टिव वॉल्केनो का मतलब होता है जहाँ पे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं एंड दैट इज़ इन द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार. वॉल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया. वॉल्केनिक इरप्शन से काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी होता है, उसके लोकल एरिया में भी उसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है. वॉल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू. इफ़ देर आर माइनस थिंग्स then there are also plus things of volcanic eruptions. The fertility of land increases due to lava. तो पहला benefit है that the fertility of the land or the soil increases because of lava, because lava is also present, right? The agriculture production is very good due to fertile land in Java and Sumatra as it is made of lava. तो उस एरिया में जहाँ पर लावा प्रेजेंट होता है वहाँ पे वो वहाँ का लैंड का फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है. द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स हेल्प द फार्मर्स टू ऑब्टेन एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन. एंड सॉइल के अंदर जो पोटेशियम रिच होता है, मतलब जो वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स पाए जाते हैं, जो भी उसके अंदर वॉल्केनिक के जितने भी जो कुछ भी पाए जाते हैं, लावा हो या और भी बहुत सारे जो एमिट होते हैं मटेरियल्स, वो जो भी पाए जाते हैं, उसके वजह से फार्मर्स को एक और बेनिफिट होता है एंड दैट इज़ दे हैव एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो सकता है. द हॉट वाटर स्प्रिंग इन द एरियाज ऑफ वॉल्केनो हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर्स स्किन डिसीजेस. और ये जो एक और बेनिफिट है दैट वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जर्म किलिंग प्रॉपर्टी होता है उसमें, जिसके वजह से स्किन डिसीजेस को भी क्योर किया जा सकता है. At a lower depth from surface of earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminium, etc. can be easily obtained due to volcano. And जहाँ पे volcanic eruptions होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे minerals पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में. For example, mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminium, all these minerals obtained very easily. The lava that cools down inside the vent of एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे लावा ठंडा होता जाता है वैसे वैसे वो किसका शेप लेता है, डायमंड का.
The small rocks thrown out during the volcanic eruption known as lapilli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily. और वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम में जो छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसको लापिली भी बोला जाता है इन लोकल लैंग्वेज. एंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका ये है दैट दे कैन बी मोल्डेड ईजिली, मीन्स उसको कोई भी शेप दिया जा सकता है. सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 5 natural disasters. I will be back soon with part 2 of this chapter. Thank you.